नमस्कार दोस्तों। नाउ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि मेरे से ओपीडी में पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, इज देयर एनी वे दैट आई कैन ट्रीट माय नी पेन विदाउट सर्जरी और विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ मेडिसिन्स? नाउ दिस इज द टॉपिक आई विल बी डिस्कसिंग विद यू टुडे. सो एज यू ऑल नो, आई एम डॉक्टर गौरव खेड़ा. मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ. आई एम अटैच्ड टू अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल एट न्यू दिल्ली. नाउ ये एक क्वेश्चन आई थिंक हर एक पेशेंट मेरे से पूछता है, चाहे उस पेशेंट की नी की सिचुएशन कितनी भी खराब हो. And the answer to this question is yes, there are things that we can do for your knees, जिसमें कि कुछ भी इंटरवेंशन, मतलब कुछ मैं ना इंजेक्शन लगाऊंगा, ना मैं कोई दूरबीन वाला ऑपरेशन करूंगा, ना घुटना बदलने वाला ऑपरेशन करूंगा. Yes, there are methods to do help you, but this is mainly for early osteoarthritis. Later stages में मेरे पास other than कुछ इंटरवेंशन क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं होता. That is why you should be going to your doctor faster. The moment you are having knee pain, you should be consulting your doctor and you should be discussing out with your doctor that what are the options. Now coming back to our topic कि हम क्या क्या कर सकते हैं, which are non-invasive procedures, and ये आप क्या क्या कर सकते हो without really a doctor's help. So इसमें first is weight loss. The moment you start having knee pain, you should start thinking of weight loss. क्यों? क्योंकि देखिए, आप imagine करिए, weight is extra weight you're carrying in your body. आप एक पिट्ठू बैग पहनिए, उसमें weight डालिए 10 to 15 kgs. एंड यू ट्राई गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स. तो जितना नॉर्मली आप चल पाते हो, पहले तो आप ऑब्वियसली थक जाओगे. यू कैरिंग ऑल दैट एक्सेस वेट एंड यू विल आल्सो हैव स्टार्ट हैविंग पेन इन द लेग्स. नाउ इमेजिन ये आप डेली कर रहे हो एंड दिस इज गोइंग ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स टुगेदर. सो अल्टीमेटली यू विल रीच अ पॉइंट व्हेन योर नीज आर गोइंग टू हर्ट. सो वेट लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी लूजिंग वेट इफ यू हैविंग नी पेन, एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो गुड फॉर यू ओवरऑल. आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, रेस्पिरेटरी हेल्थ, एवरीथिंग इंक्रीजेस विद वेट लॉस. In fact, in early osteoarthritis, I always tell my patients 5 kgs of weight loss will get you 10 years of knee life. तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है weight loss से. Now, second is lifestyle modification. अब lifestyle modification लोग पूछते हैं क्या है. lifestyle modification में क्या क्या आएगा? Avoid certain activities. हम लोग चौकड़ी मार के बहुत बैठते हैं. So cross leg sitting should be avoided. हम लोग squatting बहुत करते हैं. We tend to go down on our knees very often. So squatting should be avoided. Indian style toilets should be avoided अगर आपको knee pain हो रहा है. Then certain activities like अगर if you are running and आपको OA develop हो रहा है, तो you should be avoiding that. Maybe you can shift to something like cycling. If you go for hikes, आप trekking करते हैं and that is causing issues with your knees, then maybe start going for normal walks which are not on elevated surfaces. तो ये सब हो गया हमारा lifestyle changes. Of course, एक another important thing is using stairs is very healthy, but not if you have a knee problem. अगर आपको नी में issues हैं तो you should be avoiding stairs. Staircase use करने से unluckily knees आपकी ज़्यादा deteriorate होंगी. तो ये दो topics हो गए. Third are nutritional supplements. Nutritional supplements are easily available. They are over-the-counter drugs. They are safe. And अगर relatively देखें, early osteoarthritis में ये काफ़ी help करते हैं. ये क्या होते हैं? Glucosamine, most commonly used nutritional supplement. It is widely available. बहुत सारी कंपनीज के आते हैं. आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि कौन सा आपको खाना चाहिए. But that really helps in preventing or delaying degeneration of your joint. But again, you should remember that there is no scientific proof कि बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा. हाँ, studies have shown कि early osteoarthritis में to a certain extent this is helpful. But long-term use में how helpful it is, we cannot predict that. Yes, the advantage is that there is no long-term side effects of stuff like glucosamine. Then comes dietary changes. This is the fourth thing that I'll be talking to you about. Dietary changes are very important. So first, I will tell you क्या नहीं करना चाहिए. First, alcohol. Alcohol is the worst thing जो आप अपने joints के साथ कर रहे हो. तो अगर आपको नी पेन है या कोई भी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी. क्यों? अल्कोहल से देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट हैपेंस इन योर बॉडी. नाउ इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली व्हाट इज मेकिंग योर आर्थराइटिस वर्स. तो अगर आप इन्फ्लेमेशन किसी तरीके से कम कर पाएंगे, आपका आर्थराइटिस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा. सेकेंड, कट डाउन योर शुगर्स. शुगर्स अगेन ये लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. तो अगर आपको जॉइंट में पेन्स हैं तो आप अपने शुगर्स कम करिए. Third is smoking. As I said, smoking is like alcohol. It doesn't have any good effects. You'll suffer from oral cancers, lung cancers. There's so many other effects of smoking, and osteoporosis होता है.
जॉइंट डिजनरेट होती है, पूरे बॉडी में इन्फ्लामेटरी चेंजेस आते हैं. तो एज सून एज पॉसिबल यू शुड बी एबल टू क्विट दिस हैबिट एंड इट इज डेफिनेटली गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन. तो ये तो हमारे 4 कॉजेस हो गए जो मैंने डिस्कस करे. मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ इन चारों को. फर्स्ट मैंने आपको बताया था दैट वाज वेट लॉस. सेकंड मैंने आपको बताया था इज लाइफस्टाइल चेंजेस. थर्ड मैंने आपको बताया था इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. फोर्थ मैंने आपको डाइट में क्या अवॉइड करना चाहिए बताया था. ऑफ कोर्स आई हैव टू टेल यू कि डाइट में क्या लेना चाहिए. यू शुड बी टेकिंग एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स मोर इन योर डाइट. एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स में क्या क्या आएगा, टर्मरिक आएगा, बेरीज आएंगी, मशरूम्स आएंगे, टमेटोज आएंगे. तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं. अगर आप थोड़ा किसी को कुछ एग्जॉटिक चीज़ खानी है तो एवोकाडोज आएंगे, फैटी फिश, सामन एंड ऑल, इनमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. दे आर वेरी गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ एंड ऑफ कोर्स योर जॉइंट्स ऑल्सो. सो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए. तो ये तो 4 मेन कॉज हो गए. फाइनली लास्ट इज वन पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, दैट इज एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड मीट अ फिजियोथेरेपिस्ट और योर रिहैबिलिटेशन डॉक्टर. सो क्या करना है, आपने अपनी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करना है, आपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेंथन करना है. दैट विल नॉट ओनली improve the mobility of your joint, that will not only improve the range of your joint, that will also help to keep the joint apart. मतलब टिबिया और फीमर को थोड़ा दूर रखने में हेल्प करेगा. सो फिजियोथेरेपी आई ऑलवेज से इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाय फिजियोथेरेपी आई डू नॉट मीन मोडालिटीज लाइक हॉट पैक, अल्ट्रासोनिक या टेंस या IFT. ये सब का कोई फायदा नहीं होता. I will talking about proper physical rehabilitation where you are doing strengthening of your joints, where you are doing strengthening of your muscles. So that should be included in your daily routine. You should avoid high impact activities, but you should do these exercises. And I think meeting a good physiotherapist for these exercises is very important. And तो ये हमारे 5 main points हो गए जो कि help करते हैं to treat osteoarthritis without any intervention or without any surgery. मैं 2 पॉइंट इसमें अलग से मेंशन करूंगा. वन इज यूज ऑफ ब्रेसेस. ब्रेसेस क्या होते हैं, दीज आर ऑफलोडिंग ब्रेसेस. तो जो हमारा मीडल एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट, तो जॉइंट का अंदर वाला साइड होता है, उस पर जो फोर्स आ रहा होता है ये उसको कम करने में हेल्प करता है. बट यू शुड ऑलवेज स्पीक टू योर कंसल्टेंट. यू शुड आस्क योर कंसल्टेंट दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्रेस इज रिकमेंडेड फॉर यू एंड हाउ दिस ब्रेस इज गोना हेल्प यू. You should be talking to your consultant because you have braces which are for the medial stress, for the lateral stress. अलग-अलग टाइप के braces आते हैं, तो definitely you should be talking to your consultant regarding that. And last is wedges. Wedges क्या होते हैं, आपके पैर का जो इंसोल होता है, फुट का जो शू का इंसोल होता है, वहाँ पे रखते हैं. ये wedges कैसे हेल्प करेंगे, फुट का जो अलाइनमेंट होता है उसको चेंज करेंगे. फुट का अलाइनमेंट चेंज करने से आपकी नी की अलाइनमेंट चेंज होगी. नी की अलाइनमेंट चेंज करने से आपको पेन में रिलीफ आएगी. बट अगेन you have to be consulting your physician, your consultant, and your orthopedic surgeon is going to tell you कि आपको कितने wedges की ज़रूरत है, किस एंगल के wedges की ज़रूरत है. You have to go to an orthotist जो कि wedges बनाते हैं. ये wedges बना के आपके शूज़ में लगाएंगे and they should be able to help you. So I hope this common question जो patients मेरे से बहुत पूछते हैं कि भाई कोई तरीका है जिसमें विदाउट सर्जरी हम लोग बच सकें. Yes, तरीके हैं, मैंने आपको बताए. But I will again insist, this is only for early osteoarthritis and not for later stages or advanced stages. So if you have any doubts, please feel free to contact me, message down below, and I'll see you soon with a brand new. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.